Hello students, my name is Naveen and welcome to our YouTube channel. So in today's tutorial, we are going to talk about hierarchical inheritance in Python. So in this type of inheritance, two or more than two classes are derived from a single base class, right? तो एक क्लास से मेरे पास दो या दो से ज़्यादा क्लासेस derive होंगी, right? So let us make a base class and then we will make two child classes which are inherited from the same base class, right? So first of all, I'm going to make the structure, right? So let's say the name of the class is employee, right? And then here I'm just write the keyword pass. Then another class will be class. Let's say name of the class is finance, and this finance class is inherited from class employee, employee, right? And then again I'm using pass keyword here, right? Then the next class is, let's say it is library, and this class is also inherited from employee class, right? And here again I'm using pass keyword, right? So this would be the overall structure of the scenario, right? So employee class है, employee class से दो classes inherit हुई, so there you can see I have pass here the name of the parent class, employee class. So finance class as well as library class, these two classes are inherited from the same class employee, right? तो अब मैं अंदर कोड लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, राइट? सो सबसे पहले मैं एम्प्लॉय क्लास के फंक्शन लिखता हूँ. लेट्स से एम्प्लॉय क्लास के अंदर मेरे पास एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है? या फिर मैं कंस्ट्रक्टर ले लेता हूँ. चलो मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं नेम, एम्प्लॉय का नेम और एम्प्लॉय का कोड इनपुट करवा लेता हूँ, राइट? सो लेट्स से it's having a constructor def underscore underscore init underscore underscore, and here this is having two arguments, right? Self dot name comma code. तो ये दो argument है, right? So here I will write say self dot e underscore name, employee name is equals to name, right? Then self dot e underscore code is equals to code, right? तो मैंने क्या किया, जब मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो दो वैल्यू जो से पास होंगी, नेम और कोड, तो एक स्ट्रिंग और इंटीजर टाइप. सो दिस constructor will assign those two value to ename and ecode respectively. So name and code would be assigned to ename and ecode, right? In the same way, in the same way, I'm going to write a function for finance class, right? So let's say here I have a function get data function, right? कुछ भी नाम ले सकते हैं आप, मैंने get data ले लिया. यहाँ पे मैं क्या करवा रहा हूँ, मैं जो एम्प्लॉई है उसकी सैलरी, फाइनेंस डील्स विद द सैलरी, लेट्स से सेल्फ कोमा मैंने यहाँ पे ले लिया सैलरी, राइट? जो सैलरी पास होगी एंड आई एम गोइंग टू साइन दिस सैलरी टू ई अंडरस्कोर सैलरी, उस एम्प्लॉय की सैलरी में सेल्फ डॉट ई अंडरस्कोर सैलरी इज इक्वल्स टू सैलरी, राइट? और उसके बाद मैं यहाँ पे एक फंक्शन और ले लेता हूँ जो यहाँ पे सैलरी को मैं शो करूंगा, राइट? सो डेफ शो सैलरी, राइट? सो जस्ट टू प्रिंट दी सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय. तो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय, उसका नेम, उसका कोड और उसकी सैलरी को प्रिंट करने के लिए, राइट? सो हियर आई एम जस्ट प्रिंटिंग द नेम, कोड एंड सैलरी, राइट? सो आई विल राइट सेल्फ डॉट e underscore name comma. So here I'm using the, I may use the tab slash t just to give the tabulation space, right? By default 4 space, comma, self dot e underscore code, right? Then in the next line or in the same line I can also print, right? So here I'm printing the salary. So here I'm writing salary is, right? So it is self dot
salary, right? तो ये हो गया मेरा second class. Now in the third class, library class, so let's say this class is having one function issued to show the number of books issued to a particular employee, right? So here this class is having a function self comma count, right? And here I'm writing self dot t underscore count. ठीक है, टोटल काउंट के लिए मैं कुछ भी वेरिएबल नेम कुछ भी ले सकते हो आप, काउंट भी ले सकते थे, सेम भी ले सकते हैं आप, इज इक्वल्स टू काउंट, राइट? एंड देन हियर आई एम हैविंग शो रिकॉर्ड, राइट? तो शो रिकॉर्ड फंक्शन में मैं शो करूंगा नेम ऑफ द एम्प्लॉई, उसका एम्प्लॉई कोड और उसको कितनी बुक्स इशू हुई, राइट? इन द सेम वे हियर आई कैन राइट द सेम थिंग हियर, राइट? आप सेम कॉपी पेस्ट कर सकते हो, यहाँ पे वही कर लिया यहाँ पे. Then here I'm going to show the total number of books issued, right? So here I'm writing books issued, comma self dot t underscore count, right? अब मेरे पास देखिए आप क्या है, एम्प्लॉय क्लास है, एम्प्लॉय क्लास में कंस्ट्रक्टर है, राइट? तो जैसे ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा मेरे पास एम्प्लॉय क्लास का या फिर ड्राइव क्लासेस में से किसी का भी, फाइनेंस क्लास का या लाइब्रेरी का, इन दोनों में से किसी का भी ऑब्जेक्ट बनता है, चाहे एम्प्लॉय का या फिर मैं फाइनेंस का या लाइब्रेरी का, तीनों क्लासेस में से किसी का भी ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्योंकि फाइनेंस और लाइब्रेरी के अंदर एम्प्लॉय क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो इनहेरिट होकर आया है, राइट? तो अगर मैंने फाइनेंस क्लास का ऑब्जेक्ट भी बनाया तब भी मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, लाइब्रेरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तब भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. तो उस कंस्ट्रक्टर को मुझे दो वैल्यू पास करनी पड़ेंगी, नेम और कोड. नेम किसका, एम्प्लॉय नेम का, एम्प्लॉय ई नेम के लिए, और कोड किसके लिए, ई कोड के लिए. तो ई नेम और ई कोड भी मेरे इनहेरिट होके जाएंगे फाइनेंस और लाइब्रेरी के अंदर, राइट? और दूसरी क्लास जो है मेरी फाइनेंस, वो फाइनेंस में मैं क्या इनपुट करवा रहा हूँ, वहां पे एक फंक्शन है गेट डेटा टू गेट दी सैलरी, राइट? तो जब मैं इसका शो सैलरी फंक्शन कॉल करूंगा फाइनेंस क्लास का, तो इट विल शो मी नेम ऑफ द एम्प्लॉय, कोड ऑफ द एम्प्लॉय अलोंग विद द सैलरी ऑफ दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय, राइट? और लाइब्रेरी वाले फंक्शन में, लाइब्रेरी क्लास के अंदर मेरे पास इशू फंक्शन है, तो इशू फंक्शन मुझे बताएगा कि कितनी बुक्स इशू हुई पड़ी हैं, काउंट, टोटल काउंट, राइट? और यहाँ पे मैं क्या शो कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का कोड और टोटल बुक्स काउंट, कि एक नेम, जिस एक एम्प्लॉय नेम, उसका कोड ये है और उसको इतनी बुक्स इशूड है, राइट? So here first of all I'm going to make the object of the finance class, right? So let's say name of the finance class object is F1. You can take any name of your choice, right? Finance is the name of the class, right? तो अब मैंने क्या बोला कि जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, क्योंकि इस क्लास में से आप देखो इनिट इज ए कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर मेरा इनहेरिट होके यहाँ पर गया फाइनेंस के अंदर. तो जब ये कंस्ट्रक्टर यहाँ पे इनहेरिट होके गया तो ये कंस्ट्रक्टर इमीडिएटली कॉल हो जाएगा. तो जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा उसको दो आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे मुझे. तो लेट्स से इसे मैं दो आर्गुमेंट पास करता हूँ. पहला मैंने किया राज, ठीक है, विच इज एम्प्लॉय नेम, और दूसरा मैंने एम्प्लॉय कोड, लेट्स से इट इज 101, ये पास कर दिया, राइट? अब मैं कहता हूँ F1 इज ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंस, तो ये गेट डेटा को कॉल करता हूँ, डॉट गेट डेटा, and this get data function required only one argument, which is the salary, so it should be in the integer. So let's say the salary of a employee is 25, right? And here I'm going to print the shows, going to call the show salary function. So f1 dot show salary, right? And this function didn't require any argument, इसको कोई argument पास करने की जरूरत नहीं है, right? तो जब मैं ये करूंगा तो सबसे पहले मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसे दो वैल्यू पास किसने कॉल किया, F1 ने. तो F1 ने जब कॉल किया कंस्ट्रक्टर, तो एम्प्लॉय नेम राज, एम्प्लॉय कोड 101 और सैलरी ये, और शो सैलरी ये सब कुछ शो कर देगा. सो लेट अस ट्राई टू रन दिस कोड. Invalid syntax, yes, comma is missing.
So in the same way, let me check it here. Yes, it is there, right? So let me run it again. So there you can see, मैंने क्या पास की थी, उसे दो वैल्यू पास करी थी, 101 और राज। ठीक है, ये पहली वैल्यू पास करी राज, ठीक है, और दूसरी वैल्यू मैंने क्या पास करी थी, 101। तो राज वैल्यू जब पास करी तो राज वैल्यू मेरी गई यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के नेम में, राइट। और ई नेम और ई कोड मेरे यहाँ पे इनहेरिट हुए थे, इसलिए इसने शो कर दिया, राइट। तो पहला जो मेरे पास क्लास थी, फाइनेंस क्लास इनहेरिट हुई थी एम्प्लॉय से। अब मैं करता हूँ इस क्लास का, लाइब्रेरी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। सो लेट अस क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ लाइब्रेरी क्लास। L1 डॉट L1 इज इक्वल्स टू, सॉरी, L1 इज इक्वल्स टू लाइब्रेरी, राइट। और इससे भी दो आर्गुमेंट, क्योंकि जब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया लाइब्रेरी क्लास का, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, बेस क्लास का एम्प्लॉय क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, एंड दिस कंस्ट्रक्टर रिक्वायर्ड टू आर्गुमेंट, राइट। तो पहला स्ट्रिंग है, लेट्स से मैंने इसे पास कर दिया जैक, और दूसरा है एम्प्लॉय कोड, लेट्स से इट इज 110, right, and here the next line, right, and here I'm going to call the functions of the library, right. The first function is issued, so L1 dot issued, L1 dot issued, ये वाला function, right, this one। issued function का आर्गुमेंट क्या पास करना है, काउंट, कि कितनी बुक्स इशू हुई पड़ी हैं, राइट। तो लेट्स से इट इज 3, राइट। तो 3 चला गया काउंट वेरिएबल के पास, और काउंटर ने साइन कर दिया टी अंडरस्कोर काउंट को, राइट। अब मैं शो रिकॉर्ड को प्रिंट करता हूँ, राइट, द ऑब्जेक्ट ऑफ लाइब्रेरी क्लास L1 डॉट शो 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 रिकॉर्ड, राइट। तो इसे कोई आर्गुमेंट की जरूरत नहीं है, ये सिंपली वैल्यूज को प्रिंट कर रहा है। तो ये प्रिंट क्या करेगा, जिस सब्जेक्ट ने कॉल किया उस सब्जेक्ट का नेम, यानी कि जैक और 110, और उसको कितनी बुक्स इशू हुई है वो उन्होंने बताया 3, राइट। सो लेट अस रन द कोड। सो हियर यू कैन सी, पहला मेरे पास पहला ऑब्जेक्ट बना था F1 का, राज और 101, उसकी सैलरी है अभी। दूसरा ऑब्जेक्ट बना L1 लाइब्रेरी क्लास का, ठीक है, उसे मैंने ये दो वैल्यू पास करी, जैक और 110, यानी कि जैक एम्प्लॉई नेम, जिसका एम्प्लॉई कोड 110 है, उसे कितनी बुक्स इशू पड़ी हैं, 3, राइट। सो दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ हायरार्किकल इनहेरिटेंस इन पाइथन, राइट। तो जहां पे आपके पास दो क्लासेस इनहेरिट हुई हैं सेम ही बेस क्लास से, राइट। तो मेरे पास एम्प्लॉय क्लास थी, यहाँ पे ऊपर एम्प्लॉय क्लास से इनहेरिट हुई फाइनेंस क्लास और लाइब्रेरी क्लास, राइट। और जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने पहले ऑब्जेक्ट बनाया फाइनेंस क्लास का, जब फाइनेंस क्लास का ऑब्जेक्ट बना तब मेरा एम्प्लॉय क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, उसे दो वैल्यू पास हुई। उसके बाद जब मैंने L1 ऑब्जेक्ट बनाया लाइब्रेरी क्लास का, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, क्योंकि बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर लाइब्रेरी क्लास में भी इनहेरिट होकर आया था, राइट। तो बेस क्लास में मेरे पास जो कंस्ट्रक्टर था उसको दो आर्गुमेंट पास करने थे, स्ट्रिंग और इंटीजर, ये दो वैल्यू पास करी मैंने, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय कोड। और उसके बाद मैंने सेम क्लास का लाइब्रेरी क्लास का फंक्शन कॉल कर सकता था, इशूड फंक्शन को कॉल किया और इसका शो रिकॉर्ड कॉल किया, right? I think everything is clear. In case you have any doubt or any query, so you can send your doubts in the comment section, right? So thank you, student. Thank you for watching.